Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Practicing Bhakti Yoga for 26 years. So he came in contact with ISKCON in 1996, way back in 1996 when he was in Bahrain. No, and then he shifted to Dubai from there in 1998, and since then he is in the Association of Devotees. And he took the shelter of a spiritual master of his guru in 2002, and that's when he got his spiritual name, Gopi Manohar Prabhu. And not only that, he also has got his second initiation, which is Brahman initiation, in 2012. So in Dubai, Prabhu has been in the Damodar Desh congregation of devotees, which is named as Damodar Desh. And he has been doing a wide variety of services there, primarily running a Bhakti Vriksha, a tree of devotees, which is, I think, a very, very uh, time consuming, and it requires a lot of sweat and blood to run a Bhakti Vriksha. And Prabhu has been doing this for many years in Dubai. And in all the major festivals that were conducted there, he used to assist in the Abhishek of the deities and in crowd control management. Again, very, very skillful and rigorous seva that he did. And he has been doing a lot of Shiksha programs. And currently, he is connected with the Meera Road Temple, which is the Radha Giridhari Mandir. And he has been serving devotees throughout lockdown. Prabhu has been conducting Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita classes online back to back. I mean, just to give you a glimpse of his schedule, Prabhu is working, and he, before going to work, he takes a half an hour class, 8 to 8:30, Bhagavad Gita, and then he goes to work. Then he conducts his office, and when he comes back in the evening, after he's finished his household duties, in the night again he takes one class before going to sleep. And this he does every day. And his Sunday is packed. He has a class in the morning, a class in the afternoon, and a class in the evening. And we are so fortunate that Sunday morning was the only time that he had kept for himself, where he could attend to his other duties. And वो भी उन्होंने अब हमारे लिए dedicate कर दिया है. So we are so fortunate and very indebted to you, Prabhuji, for this. I would call it a sacrifice, because I know how much time the home front also needs. एंड ऑलरेडी सुबह एक क्लास ही अटेंड कर चुके हैं, बीच में इनको शायद आधा पौना घंटे का ही ब्रेक मिला है, एंड ही हैज come to share this beautiful knowledge with all of us. So thank you so much, Gopi Manohar Prabhu, for giving us your time and your very valuable association. Over to you. I don't know where you work, so you can please share that with all Yeah, of us. Over to you. yeah. Thank you very much, Vishaka Mataji. I am not at all worthy of all this praise, but yeah, I've been trying to serve my guru, and I'm trying to serve Srila Prabhupada through whatever teachings, whatever he has given us. And on material front, this is what Mataji had spoken on my spiritual front. But on material side, I'm working as an for an MNC called AECOM, and basically we are into designing
and we do lot of designing for lot of projects like high-rise buildings, metro, lot of things. So my part is I am looking after the 3D development of like we virtually create the whole project in 3D, and that's where I am involved in. So that's my material side, and on the spiritual side, it's very nice to spread the knowledge. And when Vishaka Mataji told me that we are starting one more class, I was little bit tight, and Saturday was the only time I was having some, because I had one class from 8:30 to almost 9:30, and again 10 to 11. I skipped that for session. So it's really very nice to be engaged spiritually. And when Mataji said that we have to start this one of these classes, I was very happy, and I thought starting with new buds is it's really a challenge, and it's a lot of energy. So I took up this challenge and hope to continue this nice journey with all of you, and we'll keep sharing this. It's not like it's not a one-way route that I will be only speaking. We'll be having a discussion. It's like a discussion forum. I want you to give your inputs. What are your thoughts? What is your understanding? So we can understand the scriptures in the right attitude, right manner. So let's not waste time, and we'll take off this our spiritual journey. So thank you, Vishaka Mataji, once again. Thank you, Hema Mataji, and thank you all of you. So to start with, we are starting with Bhagavad Gita. Just one more thing. Language is English okay, or you want to do it in Hindi? Any suggestions, Mataji? You want to do it on Hindi or English? I think Hindi सबको सूट करेगा, बीच-बीच में English भी आ सकती है. English, is that Hindi, okay? Hindi, English. yeah. Hindi, English? The Yeah, new okay, norm good. English, yeah. The new norm, yeah, English. Okay, we'll do it. We'll do it in English then. Thank you. Is everybody okay with that? Okay, thank you. Yes. ओके सो थैंक यू. तो जैसे हम लोग भगवद गीता क्या है, हम लोग भगवद गीता क्यों इसे पढ़ना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे इसको. इसका ज़रूरत क्या है भगवद गीता, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवद गीता की क्या ज़रूरत है हमें. बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं. दूसरा एक रॉन्ग कंसेप्शन है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है. मैं अपना कर्म तो कर रहा हूँ ना, अपने बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग माई कर्म. सो ये नोशंस, ये जो हम लोगों ने धारणाएं जो अपने दिमाग में बनाए, वेदर इट इज करेक्ट. सो विल सी ऑल दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स. अपने शास्त्रों के आधार पर हम लोग देखेंगे. तो जस्ट टू स्टार्ट विद भगवद गीता जो है, ये एक बहुत बड़ा, हम लोग सभी लोग जानते हैं, न सिर्फ भारत में, न सिर्फ हिंदुओं में, बट इवन जो दूसरे धर्म के हैं, हमारे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, सारे लोग, नॉट ओनली इंडियंस बट ये सारे विश्व में, चाहे रशिया हो, अफ्रीका हो, इराक हो, ईरान हो, सऊदी, एवरीवेयर इट इज, मतलब इतना फेमस है, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्टडी. ये कई देशों में तो एक क्या बोलते हैं, वैदिक स्टडीज का एक पार्ट भी है ये. तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है. और इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये, क्योंकि ये कहा जाता है भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत. महाभारत का एक अंश है, छोटा सा, मतलब जो देखते हैं महाभारत, महाभारत जो है सबसे, इट्स अ बिगेस्ट एपिक अब तक जो लिखा गया है. इट्स अ बिगेस्ट एपिक रिटन बाय व्यासदेव, और उसका एक छोटा सा अंश है भगवद गीता. और कहते हैं भगवद गीता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भगवद गीता जो है वो सारे वेदों का सार है. गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गीतोपनिषद बिकॉज इसमें सारे वेदों का सार है. व्हाट आर द वेदास, उनका जो क्या कंक्लूजन है,
वो हमें भगवत गीता सिखाता है हमें। और ये साक्षात जो है भगवान कृष्ण ने, हम लोग देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि था, जो बैटलफील्ड, द वॉर ऑफ बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, उसमें भगवान कृष्ण ये जो है अर्जुन जी को देते हैं ये। तो ये अर्जुन जी ने सुना उसको और कहते हैं दैट इज द राइट एटीट्यूड एंड दैट इज द राइट वे ऑफ लर्निंग भगवत गीता। लेकिन आज कलयुग में, हम लोग जानते हैं हम लोग कलयुग में हैं, तो वी डोंट हैव ए फैसिलिटी, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम साक्षात भगवान कृष्ण से इसको सुन सकें हम लोग। तो देन व्हाट टू डू, भगवान कृष्ण तो नहीं है तो हम क्या कैसे सुनेंगे इसको। तो कहते हैं कि एनी एजुकेशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द राइट। जैसे हम लोग मटेरियल एजुकेशन भी लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बेस्ट एजुकेशन मुझे कहाँ मिल सकता है, देन दे गो फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं, कोई कैम्ब्रिज में, कोई ऑक्सफोर्ड में, जो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो कहीं भी वो रोड छाप कोई ये बाबा है हाथ उठा के खड़ा है एंड स्टार्ट स्पीकिंग, दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम। क्यों? जब भौतिक ज्ञान, जो मटेरियल एजुकेशन है, चाहे वो MBBS हो या कोई भी ग्रेजुएशन करना, वी आर लुकिंग फॉर एन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये इतना जो उच्चतम ज्ञान है विच इज ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक ज्ञान, ये हम लोग किसी से भी क्यों लेना हम लोगों को। तो इसके लिए कहते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वी हैव टू बी टेकन फ्रॉम द राइट सोर्स एंड दैट राइट व्हाट इज। जैसे लोग जो हैं कभी कभी बोलते हैं, कोट करते हैं, अरे वो सीरियल में भगवान कृष्ण ऐसा बोल रहे थे और ये मैगजीन में मैंने पढ़ा कि ऐसा कहा गया। तो दैट इज नॉट द राइट सोर्स, दे आर नॉट द राइट पीपल टू टेल अस, कि बिकॉज उनको अपना जो ज्ञान है दैट इज नॉट कंप्लीट। तो इसके लिए जो ये राइट सोर्स अभी कहाँ में मिलेंगे, जैसे मुझे मटेरियल एजुकेशन के लिए तो पता है कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है या ऑक्सफोर्ड, तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? फॉर दैट 4 संप्रदाय दिए गए हैं। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं कौन से हैं, विल एक है ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं दे आर द राइट सोर्सेस। और क्यों वाई आर दे राइट सोर्सेस? बिकॉज भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान है ये डायरेक्ट भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ये ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी जी को दिया था, वो श्री संप्रदाय है, शिव जी को दिया था, वो रुद्र संप्रदाय है, और जो 4 कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सानंद और सनत कुमार, ये जो 4 पुत्र हैं ये कुमार संप्रदाय। तो होता क्या है कि जब 4 लोग जब विद्या ग्रहण करते हैं तो दे स्टार्ट स्प्रेडिंग इट डाउन इन देयर लीनिएज, मतलब उनका जो परंपरा से है वो नीचे देना शुरू करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, और व्यासदेव जी ने आगे ऐसा ये मतलब फैलाते गए। तो इस्कॉन एज ए सोसाइटी हम लोग जो है वी आर कमिंग फ्रॉम ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में आते हैं एंड प्रभुपाद जी का एक जो भगवत गीता लिखा गया है या जो भी उन्होंने कहा है दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ स्क्रिप्चर्स। लेकिन आमतौर पे हम लोग देखते हैं कितने ढोंगी बाबा लोग हैं, या मुझे जो मन में आया मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट कृष्णा इज सेइंग हैज टू बी अंडरस्टैंड इन द राइट एटीट्यूड एंड द राइट सेंस। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इसीलिए जो 4 संप्रदाय हैं, ये 4 संप्रदाय में से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। दे आर द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ आवर स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आई जस्ट रिपीट, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। एंड वी बीइंग इन इस्कॉन, एज एन इस्कॉन सोसाइटी, वी फॉल इनटू ब्रह्म संप्रदाय। तो प्रभुपाद जी हमेशा यही बोलते हैं कि मेरा ये ज्ञान नहीं है। तो वट एवर प्रभुपाद जी से, ये मैंने कुछ नहीं दिया है, जो भगवान कृष्ण का मैसेज जो ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया था, वही हम लोग बस रिपीट कर रहे हैं। वी आर जस्ट पैरेट्स। तो मैं भी कुछ अपना नहीं बोल रहा हूँ। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जो व्यासदेव जी का है, जो प्रभुपाद जी का, हमारे जो पूर्व आचार्य हैं,
जो उन्होंने कहा है वो जस्ट हम लोग तोते की तरह हम लोग इसको रिपीट करेंगे यहाँ पे, एंड विल ट्राई टू गिव यू द सेम थिंग। तो हम लोगों को ये राइट सोर्स में लेना चाहिए। और फिर दूसरा था कि अब जो भगवत गीता है बहुत से लोगों ने पढ़ी है, एवरीबडी हैज रेड भगवत गीता, चाहे थोड़ी बहुत है या कुछ ना कुछ तो पता है। लेकिन प्रभुपाद जी हम लोग इसमें देखेंगे, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि मुझे ये एज इट इज, व्हाट वाज द नीड टू राइट दिस भगवत गीता एज इट इज, उन्होंने क्यों लिखा? बिकॉज प्रभुपाद इज स्ट्रेसिंग, बोलते हैं प्रभुपाद ने जब लिखना शुरू किया उससे पहले ऑलरेडी देयर वर ऑलमोस्ट तो कहते हैं 685, ऑलमोस्ट 700 एडिशंस ओनली इन इंग्लिश। बाकी हम लोग दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 700 एडिशंस थे। और ये 700 एडिशंस होने के बावजूद भी कोई समझ नहीं पा रहा था कौन भगवान है। अभी आज भी हम लोग जब चर्चा होती, किसी से पूछे भगवान कौन है, तो सर खो जाने लगते हैं, बोलते हैं मे बी ये है, मे बी वो है, दे आर नॉट श्योर। और उनको पूछो भगवत गीता पढ़ी, बोलता हाँ पढ़ी है। तो जब भगवत गीता पढ़ने के बाद में भी अगर ये कंफ्यूजन है तो दैट मैसेज इज नॉट करेक्टली रीच्ड। तो जो भगवान कृष्ण जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा है, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये मैसेज जो भगवान कृष्ण जो देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखा भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, कि व्हाट लॉर्ड कृष्णा हैज टू से। क्योंकि क्या हो रहा था कि डाउन द लाइन जो है सभी लोग जो है अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। कोई कह रहा है कि 5 पांडव यानी 5 इंद्रियां हैं, एंड लॉट ऑफ ऑल कंकॉक्शंस, स्पेकुलेशंस चल रहा था। और इसीलिए प्रभुपाद हैज रिटन दिस भगवत गीता, एंड इसमें वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि व्हाट इज द राइट मैसेज फ्रॉम कृष्णा, एंड हमारे पूर्व आचार्य क्या बोल रहे हैं। किसी हम लोग जैसे जैसे हम लोग जाएंगे हम लोग भगवत गीता के श्लोकों से, तो जो पूर्वज आचार्य हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, और जो दूसरे आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य, उसके उनके हम लोग ये भी देखेंगे उनका क्या कमेंट्री है उनका। सो वो है। और पूरा अगर हम लोग देखें भगवत गीता एज ए होल, तो भगवत गीता में सिर्फ 5 टॉपिक हैं। तो 5 टॉपिक क्या है? एक, भगवान कौन है। दूसरा, जीव यानी जो हम लोग हैं, जो जीवात्मा, जीवात्मा कौन है, क्या है। फिर प्रकृति, दिस मटेरियल नेचर। फिर प्रकृति है, एंड देन उसके बाद में आता है काल, यानी ये जो काल है, जो हम लोग बी आर चोपड़ा का भी हमने महाभारत देखा होगा, तो वो बोलते ना मैं समय हूँ। तो वो जो काल है दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड। तो भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और कर्म क्या है। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सभी लोग का ये एक मिसकंसेप्शन है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर्म ही मेरी पूजा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो वो मेरा कर्म है। तो अगर उस सेंस में देखें तो हर कोई जो है, इवन जो एक डाकू है या एक चोर है, वो भी अपना बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो भी यही बोलेगा कि ये तो मेरा कर्म है। तो इज दैट कर्मा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो वो 5 चीजें हम लोग इसको भगवत गीता के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। भगवान कौन है, जीव यानी हम लोग कौन है, हमारा क्या रिलेशन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और कर्म क्या है। तो दिस 5 टॉपिक्स जो दे आर मेजर जो टॉपिक्स कवर्ड इन भगवत गीता। और इसको जैसे मैंने कहा कि इसे हमें परंपरागत लेना चाहिए, और वो हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। तो ये जो है एक बेसिक जो था, बैकग्राउंड था भगवत गीता स्टार्ट करने के पहले। तो आई थॉट इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल टेक जो है भगवत गीता के श्लोक्स। तो हमारा जो ये पूरा एक क्या बोलते हैं ना, सीन अभी सेट हो गया कि व्हाट इज द बेसिस एंड कैसे लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग विल नॉट टेक, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वी हैव ओनली 1 hour, राइट विशाखा माता जी? अप टू 12:30 तक Yes, we'll- yes, one Yeah. hour की बात हुई है. Okay, okay. We can leave 5-10 minutes for question answers if any. 5 minutes. या हाँ, वही मैं बोल रहा था
कि अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चंस है, तो आप जो है उसको नोट करके रख लीजिए अपने पास, एंड लास्ट 10 मिनट्स वी कैन यूज फॉर दैट। हम लोग वैसा करेंगे हम लोग। तो भगवत गीता जो है वो अभी उसका सीन ये है कि यहाँ पे सारे लोग जो हैं कुरुक्षेत्र पे जमा हुए हैं। यहाँ पे उनको युद्ध करना है, एंड एवरीबडी इज देयर रेडी टू फाइट। और होता क्या है कि भगवत गीता आई कैसे कि जब युद्ध होने वाला था, हम लोग देखेंगे इसको, तो जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन जी को एक शंका हो गई कि कौन कौन है यहाँ पे, युद्ध करने के लिए कौन आया है, और मैं देखना चाहता हूँ इनको, आई जस्ट वांट टू सी एवरीबॉडी। और फिर वो जब अपने रिलेटिव्स, अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को देखते हैं, अपने दादाजी पितामह भीष्म को देखते हैं, व्हेन ही सीज एवरीबॉडी ही गेट्स कंपैशनेट, एकदम ओवरवेल्म्ड कि अरे मुझे इनसे युद्ध करना है, मैं इनको मारूंगा। एक्चुअली उन्होंने पहले भी युद्ध किया था, पितामह भीष्म से भी किया था, द्रोणा से भी किया था, सभी से युद्ध किया, बट दैट वाज नॉट अ फेटल वॉर। जैसे हम लोग अगर विराट का भी अगर हम लोग युद्ध देखेंगे तो सिंगल हैंडेड, जब वो ब्रह्मनल्ला के वो जब एक ट्रांसजेंडर के फॉर्म में वहां पे रह रहे थे, तो अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा एंड बड़े बड़े जो महारथी थे वो सिंगल हैंडेड, वो अकेले ही उन्होंने उनको हरा दिया था। तो तभी उनको ये नहीं था कि मुझे मारना है। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि इस युद्ध भूमि में इट वाज सुसाइडल वॉर, या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। दिस वाज क्लियर कि मतलब ये जो है हम लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है, एंड दैट्स व्हाई ही फील्स, मतलब ही स्टार्ट्स क्राइंग कि मैं कैसे इनको मारूं मैं। एंड ये जो कंफ्यूजन उनके मन में, माइंड में क्रिएट होता है, वहां पे भगवान जो है भगवत गीता बोलना शुरू करते हैं, एंड दैट्स बोलते हैं वो भगवत गीता का रूप लेती है। तो हम लोग जो है आज भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। हम लोग विल टेक वॉट एवर श्लोकास वी कैन क्विकली, और आई थिंक आप लोग शायद मतलब संस्कृत ना बोल पाए, बट यू जस्ट ट्राई ऑन योर एंड। तो मैं बोलते जाता हूँ एंड एक एक हम लोग लेते हुए चलते हैं। तो पहला जो अध्याय है उसको सैन्य निरीक्षण योग कहा जाता है उसे, यानी अर्जुन जो है वो सारे जो सैन्य है उनका निरीक्षण करते हैं। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं इसे ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, उस चैप्टर का नाम दिया है। तो विल स्टार्ट फर्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट श्लोका जो है वो स्टार्ट होता है धृतराष्ट्र से। सो उनका पहला जो श्लोक है वो ये ऐसा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसका हम मीनिंग देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहते हैं धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जी का प्रश्न है कि जो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो विभाजन कर रहा है। एक्चुअली पांडव जो हैं वो भी कौरव हैं, बिकॉज जो कुरु वंश है उसी के लिनिएज में ये दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र का हम लोग देखते हैं महाभारत, जैसे हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे हम लोग महाभारत की स्टोरीज भी कवर करते हुए चलेंगे। तो धृतराष्ट्र जो था उसको कैसे, वो बचपन से अंधा था, वो व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज ब्लाइंड, और उसकी वजह से वो बड़ा पुत्र होते हुए भी वो राज्य उसे नहीं मिला हस्तिनापुर का, वो मिला पांडु को, बिकॉज धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। तो ये जो एक जो भावना थी कि मेरा राज्य है, ये मेरी अंधेपन की वजह से वो पांडु को मिला, तो ये हमेशा अटैचमेंट उनका वो रहा वो, और इसकी वजह से वो हमेशा वो इस बात को बाइफरकेट करें कि ये मेरा राज्य है और ये पांडु को नहीं मिलना चाहिए था, एंड पांडुओं को वो हमेशा अलग करते। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडुओं के पुत्र,
तो वो एक उनको पांडवों के पुत्रों को अलग समझ रहे हैं और वो कहते हैं कि जब युद्ध भूमि पर जमा हुए तो उन्होंने क्या किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज ए वेरी फुलिश क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम लोग कहें कि हम लोग जैसे सब हम लोग मिले हैं, बोले हम लोग चलो हम लोग गोविंदास चलते हैं, हम लोग थोड़ा प्रसाद लेते हैं, तो कोई जो व्यक्ति नहीं आ पाया है ये ऑब्वियसली मतलब उसको पता है कि गोविंदास गए प्रसाद लेने के लिए गए वो वहाँ पे, तो विल नॉट आस्क कि विशाखा माता जी, आशीष जी, हेमा जी, मोनिका जी, ये सब वहाँ पे गोविंदास में जमा हो तो उन्होंने क्या किया। ऑब्वियसली वहाँ पे वो प्रसाद खाने के लिए जमा हुए हैं तो वो प्रसाद ही खाएंगे वहाँ पे। बट यहाँ पे इसका ये जो प्रश्न है, दिस शोज हिज अटैचमेंट कि, और उसका एक भय जो था वो दिख रहा है इसमें कि ये वहाँ पे जब उपस्थित हुए। और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि कुरुक्षेत्र जो था वो देवताओं भी वहाँ पे आके, वहाँ पे इट वाज लाइक ए होली प्लेस, तो देवता भी वहाँ पे आके वहाँ पे जो थे आया करते थे, अपना जो था मतलब जो अच्छा कार्य किया करते थे। एंड ड्यू टू सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट बिकेम एन बैरन लैंड, और इसलिए वहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे। बट वो जो इफेक्ट था देवताओं का जो था एंड दैट होली प्लेस का, वो हमेशा वहाँ पे रहा। तो धृतराष्ट्र का मन में एक भय है कि ये जो दोनों लोग यहाँ पे जमा हुए हैं तो ऐसा तो नहीं कि कुछ वो जो होली प्लेस धर्म क्षेत्र है उसका असर हुआ और मेरे पुत्रों ने मना कर दिया, या पांडवों के पुत्रों ने बोला नहीं नहीं हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते। तो ही वांटेड दैट हस्तिनापुर। सो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी इज आस्किंग कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया। तो और दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं बैकग्राउंड में कि जो उन्होंने किससे कहा, ये संजय से कहा। तो धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, उनको कुछ दिख नहीं रहा था, तो व्यासदेव जी ने संजय जो उनके शिष्य हैं व्यासदेव जी के, और वो धृतराष्ट्र के सारथी थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको चाहिए तो मैं आपको मैं ये दे देता हूँ डिवाइन विजन, यानी दिव्य चक्षु मैं देता हूँ, और इससे आप जो है सारा कुरुक्षेत्र देख सकते हैं। तो अगर इट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली हम लोग देखें तो, अगर मैं एक कैमरा सेट करता हूँ कुरुक्षेत्र में तो आई विल बी एबल टू सी ओनली दैट पोर्शन, या उतना ही मेरा जितना एंगल जो कवर हो रहा है कैमरा से। बट जो व्यासदेव जी ने जो दिव्य चक्षु दिया था, एट द सेम टाइम यहाँ पे पांडव क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं, वहाँ पे द्रोणाचार्य का, everything he was able to see at a time. So that was something really, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते उस बारे में। तो ये जो है धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जब जमा हुआ तो उन्होंने क्या किया। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। अब नेक्स्ट श्लोका जो है दैट इज सेड बाय संजय। तो संजय उनको रिप्लाई देना शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो वो कहते हैं संजय सेड, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. यानी संजय ने कहा, वाच मैं थोड़ा सा संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते चलता हूँ, यू कैन रिलेट। तो संजय उवाच, उवाच यानी संजय सेड कि जब उन्होंने देखा, जब उस मिलिट्री फॉर्मेशन को, हम लोग शायद बाहुबली में देखा होगा कैसे अलग अलग रचना बनाते हैं, कोई कुछ व्यू बनाता है, कोई बर्ड व्यू का व्यू बनाता है, कोई अलग अलग जो है, ये एक साइंस है, ये मिलिट्री साइंस है कि कौन सा प्रकार का व्यू बनाने से हमारी विजय प्राप्त हो सकती है। तो और वो भी जब देखते हैं, जब वो सामने वाले का व्यू देखते हैं, इसने इस प्रकार का व्यू बनाया, जैसे हम लोग अभिमन्यु में देखें तो उन्होंने चक्रव्यूह बनाया था और उसमें वो फंस गया था। तो अलग अलग ये व्यू हैं एंड दिस इज अ मिलिट्री साइंस। तो ये कह रहे हैं कि ये जब व्यू जब दुर्योधन ने देखा तो वो क्या हुआ, आचार्यम उपसंगम में अपने आचार्य ने द्रोणाचार्य जी के पास गए
और राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य सॉरी दुर्योधन को यहाँ पे राजा कहा गया, ही वॉज द किंग वैसे कहा गया, और राजा वचनम अब्रवीत, वो द्रोणाचार्य जी के पास वो जाके पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक चीज है कि द्रोणाचार्य जी को सॉरी दुर्योधन को राजा कहा गया है, एंड वो ऑलरेडी ऑल्दो ही वाज द किंग, ही हैड टू गो टू हिज मार्शल टीचर, जो मतलब वो युद्ध कर रहे थे, उनके पास जाके सीरियसली उनको वो देख के थोड़ा सा ये हो गया कि इनका व्यू कितना अच्छा व्यू बनाया है, कितना अच्छा फॉर्मेशन है। तो ही स्टार्टेड एंड गोइंग स्पीकिंग टू दिस द्रोणाचार्य जी कि ये देखिए कि कितना अच्छा व्यू हो बनाया है, और वो इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में वो बोलना शुरू करता है। तो विल सी नेक्स्ट श्लोका, और इसमें वो क्या कहते हैं थर्ड श्लोका में, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो क्या कहता है दुर्योधन, ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. तो अब जो है कहते हैं कि दुर्योधन जो था वो बहुत कपटी था, एंड ही वाज वेरी एक्सपर्ट इन टॉकिंग, मतलब कैसे टॉपिक को प्रेजेंट करना है, ही वाज वेरी एक्सपर्ट इन दैट। तो वो अब जाके द्रोणाचार्य जी से क्या कह रहा है, देखिए पश्चेताम, देखिए कि ये जो पांडु पुत्रों ने जो व्यू की जो रचना की, कितना अच्छा रचना किया है इन्होंने, और व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेना। तो वो कह रहे हैं कह रहा है दुर्योधन कि ये जो व्यू है, व्यू की रचना किसने की है, द्रुपद का जो पुत्र है। तो ही इज एक्सपर्ट इन टॉकिंग, तो वो डायरेक्टली कह सकता था कि ये दृष्टद्युम्न का रचना देखी, लेकिन ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग द्रुपद पुत्रेण। एंड व्हाई ही इज सेइंग दैट द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि we'll see some background to that कि द्रोणाचार्य जी और द्रुपद ये जो थे, ये बचपन के पहले काफी घनिष्ठ मित्र थे, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन ये जो थे जिस गुरुकुल में जाते थे, ये हमेशा मतलब साथ में रहते थे, और बचपन में हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कैसा उनका घनिष्ठ मित्रता हो जाता है उनका। तो उनका काफी अच्छा दोस्ती था, और तब जो है द्रुपद उनको वचन दे देता है कि तुम जब भी जो भी चाहिए तुम मुझसे आके मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये गुरुकुल छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ पे द्रुपद जो है अपना राजकुमार से वो राजा बन जाता है, और यहाँ पे द्रोणाचार्य जी भी हैं, वो बड़े हो जाते हैं, इनका विवाह हो जाता है, इनका पुत्र होता है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जब छोटा होता है तो मतलब द्रोणाचार्य इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पीने के लिए दूध भी नहीं होता। तो एक दिन क्या करते हैं, जो उनके साथ के जो बच्चे होते हैं वो मजाक करते हैं उसके साथ, वो क्या करते हैं, कुछ आटा जो होता है उसको पानी में मिक्स करके बोलते हैं ये ले दूध पी ले, और जब पीता है तो उसे बहुत मतलब बोलते ची ये क्या है करके। तो ये द्रोणाचार्य जी देख लेते हैं, और उनको बहुत हर्ट होता है उनको कि मतलब मेरे बच्चे को दूध देने के लिए मैं आई एम नॉट कैपेबल। तब उनको याद आता है कि द्रुपद मेरा मित्र है एंड ही हैज प्रॉमिस्ड मी। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो मैं अपने मित्र से मैं सहायता मांगता हूँ, उन्होंने बोला था तो जो चाहिए मुझसे मांग लेना। और फिर वो निकलते हैं, तुरंत जाते हैं, और जब एंटर करते हैं वो पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो बोलते हैं उनसे कहो कि उनका मित्र आया है। तो बाय द टाइम वो जो द्रुपद जो था उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था, ही वाज मतलब राज्य हाथ में आ गया था इतना बड़ा, द्रुपद वाज वेरी ह्यूज किंगडम। तो थोड़ा सा उनके अंदर एक ईगो आ गया था। तो जब सोचते हैं कि यार वो गरीब ब्राह्मण आया मेरे पास, तो मतलब ठीक है भेजो अंदर। तो जब भेजते हैं उसको तो बोलते हैं कि कैसे हो मित्र करके, तो बोलते हैं
बोलता है हम लोग मित्र वगैरह कोई नहीं, मित्र जो है बराबर वाले में होते हैं, तो तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते कभी भी। तो वो मतलब ऐसा इंसल्ट कर देता है उनको और उनको वहां से भेज देता है। तो ये जो था उनको काफी हर्ट हुआ था उनको बात, और इसके वजह से वो क्या करते हैं, पांडवों को शिक्षण देते हैं। एंड सारे पांडव जब कौरव पांडव, हम लोग जानते हैं कि दोनों कौरव पांडव सबने शिक्षण लिया था उनसे। और जब गुरु दक्षिणा का टाइम आता है तो दोनों पूछते हैं द्रोणाचार्य कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। तो वो बोलते हैं कि मुझे द्रुपद चाहिए, तुम उसे बांध के मेरे पास लेके आओ। तो पहले जो कौरव है वो एकदम जोश में, हम लोग जाएंगे। तो पांडवों को पता था इनसे कुछ नहीं होगा, बिकॉज द्रुपद वाज वेरी पावरफुल किंग, वो अकेला ही बहुत काफी था मतलब। तो ये 100 के 100 भाई सब सारे जाते हैं साथ में और अटैक करते हैं। लेकिन कहा गया है कि उनके जो साधारण जो सैनिक थे वो भी इतने ग्रेट वॉरियर थे कि मतलब उनको भी नहीं हरा पाए वो। और इतना, और उनमें आपस में ही इतना मतलब जो था कोई एग्रीमेंट नहीं था। एक दूसरे से बोल रहा है मैं पहले ये करूंगा, नहीं बोलता नहीं नहीं तुम ये करो वो करो। एंड बिकॉज ऑफ डिसेंटमेंट वो जो है बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं और सबको बंदी बना के रख लेता है द्रुपद और पकड़ लेता है। तो जब वापस जब ये समाचार पहुंचता है तब फिर पांडव बोलते हैं ठीक है हम लोग जाते हैं। और ये 5 होते हुए भी इनमें आपस में इतना क्या बोलते हैं ना, वो इतना साथ में थे वो, कोऑर्डिनेशन। या थैंक यू माधवी। और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था उनका कि वो 5 जाके उस द्रुपद को हरा देते हैं बुरी तरह से और उसको बंदी बना के लेके आते हैं और उनके कौरवों को भी छोड़ देते हैं और पूरा बंदी बना के लेके आते हैं और एकदम मतलब गले में रस्सी डाल के मतलब द्रोणाचार्य जी के चरणों में डाल देते, बोले ये लो आपका गुरु दक्षिणा। तो ये जो था इंसल्ट था, ही कुडंट फॉरगेट द्रुपद। और इसकी वजह से दोनों में इतना जो बचपन के मित्र इतना शत्रु हो जाते हैं वो कि बोलते हैं, मतलब उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं वो, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं जरूर इसको मारूंगा। और वो जब चले जाते हैं वापस तो वो यज्ञ करते हैं बड़ा, एक बड़ा यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में एक ही मतलब वो यही चाहते हैं कि इस यज्ञ से जो पुत्र प्राप्त हो वो द्रोणाचार्य जी का वध करे। और ये जग जाहिर था, एवरीबडी न्यू कि ये जो धृष्टद्युम्न, उसमें उस यज्ञ में से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये दोनों उस यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। तो दे वर नॉट ऑर्डिनरी बेबीज, ऐसा नहीं है कि जैसा ऑर्डिनरी बेबी जैसा मतलब उत्पन्न हुए थे, दे वर डिवाइन, मतलब एकदम मतलब थे जो उस यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। इवन द्रौपदी, तो सबको पता था कि ये जो पैदा हुआ है ये लड़का, ये सिर्फ द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा हुआ। और ये उनको भी पता था द्रोणाचार्य जी को। लेकिन उस समय में क्या होता है कि जो बेस्ट टीचर थे वो द्रोणाचार्य जी थे और द्रुपद महाराज उसी के पास लेके जाते हैं, बोलते हैं कि आप सबसे अच्छे टीचर आप, तो आप ब्राह्मण हो, आप इसे शिक्षा दो। तो मतलब आज की तरह नहीं था कि मतलब ये मुझे मारने वाला है तो आई शुड नॉट गिव हिम नॉलेज। तो एक्चुअली ब्राह्मण जो था, ब्राह्मणों का काम ही था ज्ञान देना, ना ही वो कोई उसकी फीस लेते थे उसकी, कि आजकल की यूनिवर्सिटीज में जाओ तो इतना इतना भरो, ये पता नहीं कितने कितने प्रकार की फीस होती है, सब भरने के बाद में एडमिशन। यहाँ पे तो मतलब ऐसा था कि बस उनको बोल देते थे। और ब्राह्मण भी जो थे वो बोलते कि मतलब दे वर नॉट, ऐसा नहीं है कि ये मुझे मारने वाला है तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम नॉलेज, दे वर आल्सो वेरी लिबरल। तो उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने वो उनको सिखाया। तो ये जो बात है ये यहाँ पे द्रोणाचार्य इस श्लोक में याद दिलाया, द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम द्रुपद। ये आप देखिए, ये आप ही ने सिखाया ना इसको, ये कितना बड़ी गलती किया आपने। देखो ये आज यही रचना बना के आपके खिलाफ खड़ा हुआ। तो जस्ट टू गिव दैट मतलब बैकग्राउंड, मतलब समझने के लिए आई जस्ट कनेक्टेड दिस स्टोरी। तो यहाँ पे वी कैन सी द वाक्पटुता, मतलब उसका जो एक्सपर्टीज है और प्रेजेंटिंग द टॉपिक कैसा है। मतलब वो बोल सकता था दुष्टद्युम्न, बट नहीं, से द्रुपद पुत्रेण, तो ही सेइंग दैट, और इतना अच्छा से उसने ये फॉर्मेशन किया है। तो आई थिंक आज के लिए 3 श्लोक काफी है एंड विल स्टॉप हियर। किसी का अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं।
तो पहला दिन आई जस्ट वांट टू बी हम लोग लाइटली लेते हैं, विल टेक इजी, बट नेक्स्ट टाइम से हम लोग विल गो लिटिल फास्ट. इफ एनीबॉडी हैज एनी मुझे क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन, बट ये जो पहले श्लोक में लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ रहा हूँ कि देयर इट सेज वन शुड रीड भगवद गीता वेरी scrutinizingly with the help of person who is devotee of Sri Krishna and try to understand without personally motivated interpretation. इस थोड़ा इसको elaborate करेंगे, what does this mean? Yeah, very nice question, or you can say comment, कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं. कि एक्चुअली हम लोग वही जो हम लोग जब बेसिक्स जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग बिफोर भगवद गीता, तो यही था कि अभी तक जो भगवद गीता था उसमें जो भगवद गीता का जो मतलब वी कैन से इंटरप्रिटेशंस, या जो भगवद गीता जो मतलब इट्स इन संस्कृत, लोगों को समझ में नहीं आता तो उसका रूपांतर देते हैं या इंटरप्रिटेशन देते हैं. तो दैट वेर सो कंफ्यूजिंग कि कोई भी भगवान का भक्त नहीं बन रहा था. एंड इसीलिए बोलते हैं कि एक तो इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए और दूसरा इट शुड बी फ्रॉम द डिवोटी ऑफ कृष्णा, क्योंकि वही जो है अच्छी तरह से भगवान का मैसेज समझ सकता है कि भगवान क्या कह रहे हैं. और इसके लिए बोलते हैं प्रभुपाद जी, ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड ही वाज इन द परंपरा, सो ही कुड प्रेजेंट. और बाकी जितने भी जैसे हमने देखा 700 एडिशंस ओनली इन इंग्लिश, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर लैंग्वेज, ओनली इन इंग्लिश 700. और इतना पढ़ने के बावजूद भी पीपल वर कंफ्यूज्ड कि कौन भगवान है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज. So that is what Prabhupada is highlighting in this purport. Hare Krishna. Prabhu, I hope I answered you, Ashish ji. Yes, yes. Yeah. I'm here. अब chat में काफी लोग लिख रहे हैं कि वो there is a network issue. मुझे तो कोई network issue नहीं आया. I could hear the class completely. So आशीष जी, आपको कोई network issue आया? हरे कृष्णा. नहीं, मुझे भी clearly I was able to hear very clearly. So I have not able to understand the whole chapter. Like बहुत ब्रेक हुई है मेरे एंड से आवाज. अभी भी I don't think के आवाज आ रही है. मे बी आपका पर्सनल नेटवर्क इश्यू, बिकॉज मुझे तो बहुत क्लियरली पूरा चैप्टर सुनाई दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. मुझे भी आपका अपना पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक इज नॉट स्ट्रांग टुडे. या मे बी कहीं पे नेटवर्क इश्यू होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट शायद वो मतलब कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा होगा. बट आई थिंक मेरी तरफ से तो कोई नहीं आया. मतलब इट वाज वेरी क्लियर. आई कुड बी हियर. विशाखा माता जी, आशीष जी, एंड वो वीडियो में भी पता चलता है. अगर कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में भी पता चल जाता है. गेट स्टक. मे बी शायद मेरे एंड से देन. या बट द गुड न्यूज इज दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरीथिंग. और प्रभु डालेंगे भी, तो आप इसको जरूर सुनिए. श्योर. तो जो लोग सही तरह से सुन नहीं पाए तो विल बी डूइंग रिकॉर्डिंग, और वो हम लोग इसको डाल दिया करेंगे. समझो किसी को पॉइंट समझ. माता जी, मोनिका जी, कैन यू हियर मी? इनको चैट में लिख देते हैं, है ना, कि रिकॉर्डिंग. या ओके. तो मैं और एक क्वेश्चन पूछूं अगर. या यस आशीष जी, या गो अहेड. नॉट अ क्वेश्चन. सो नो, भगवद गीता बेसिकली इट्स अ स्क्रिप्चर, राइट, जो करेक्ट भगवान कृष्ण ने कहा था. बट हमारे डे टू डे लाइफ में हम जैसे आप स्टार्टिंग में समझा रहे थे, यू नो, वो हम इसको कैसे क्या ले, मतलब इज इट एज अ स्क्रिप्चर स्टडी है, कि इज इट अ यू नो सेल्फ डेवलपमेंट, यू नो थीसिस काइंड ऑफ अ थिंग, और इट इज प्रॉब्ली अ जो हमको भगवान के करीब लेके जाए. आई मीन, हाउ डू आई यू नो व्हेन आई स्टार्ट दिस स्पिरिचुअल जर्नी, मैं उसको कैसे यू नो इंटरप्रेट करूं. व्हाट इज भगवद गीता, मतलब यू नो.
Very I hope nice. it is not a stupid question. No, I'm no, just Prabhu. This is Ashish ji. This is a very nice thing. एंड कहते हैं ना कि एक्चुअली हम लोग भागवतम भी देखे हैं तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जब कहते हैं सुतु गोस्वामी को, ये सुतु गोस्वामी जी उसमें प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं प्रश्न जो पूछने वाला होता है उससे भी बेनिफिट होता है, सुनने वाले को भी बेनिफिट होता है, बोलने वाले को भी बेनिफिट होता है. सो दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक यू हैव पुट अप. एक्चुअली लोग जो हैं दे इन जनरल, मतलब हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड रियली. बट एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो स्क्रिप्चर्स व्हेन यू स्टडी, चाहे हम लोग भगवत गीता बोले, महाभारत बोले या रामायण बोले, रामायण ऑल्सो इफ यू सी, आई डोंट नो अबाउट टुडेस कल्चर, जो आजकल के जो बच्चे हैं, आई डोंट सी सो मच इन देम बिकॉज उनमें रामायण और इतना नहीं. लेकिन हम जब अपनी बात करें तो हम लोग इतना रामायण देखते थे, सुनते थे. कोई मेरी दादी का भी कुछ कोई सुना रही है या किसी फ्रेंड से सुन लिया, या तो सो मच, एंड ऑटोमेटिकली वो हमारे अंदर वो जो कल्चर था वो इनकलकेट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली इट वाज बिल्ड. तो द पर्पस ऑफ स्क्रिप्चर इज कि हम लोग उसको सुने, एक तो एज ए शास्त्र, दूसरा ऑटोमेटिकली जो है हम लोग उसको इम्बाइब करें अपने लाइफ में. सो वी लिव दैट स्क्रिप्चर. इट इज नॉट जस्ट वो सुना, भगवान ने कहा है, वो एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़. दैट इज नॉट फॉर दैट. इट इज बिकॉज वो भगवान का वाणी है. इट इज द स्क्रिप्चर्स. वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू पुट इनटू आवर लाइफ. आई हैव टू स्टार्ट लिविंग दैट. तो इट इज एन ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइक ना हर कुछ है, मतलब उसमें हम लोगों का डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है. वी आर बिल्डिंग आवर ओन कैरेक्टर, and there is lot of things going on when you happen when you go through the scriptures, and that's why there is so much stress. इतना स्ट्रेस क्यों है कि आप लोग अपना शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए. इफ यू सी अदर्स, चाहे फिर कुरान हो या बाइबल हो, दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि हम लोगों को कुरान पढ़ना ही है, हम लोग को बाइबल पढ़ना ही है. लेकिन आई डोंट नो, मतलब ये एक समहाउ हमारे एक जो हिंदुओं में एक ये हो गया, अरे सेक्युलरिज्म है, पढ़ो तो भी चलता है, नहीं पढ़ो तो भी चलता है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग. वी शुड बी वेरी रिजिड इन आवर रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, एंड देन एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू प्लेस. और दूसरा चीज मैं ये भी ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे, जस्ट मुझे याद है कि हमारे ये ग्रंथों को इन इंग्लिश इट इज सेड एज माइथोलॉजी, विच इज वेरी रॉन्ग. वर्ड मिथ मीन्स फॉल्स. तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे आप भगवत गीता का हो या भागवतम को हो या रामायण को हो या जितने भी जो हैं, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री. इट हैज हैपेंड. और ये आज नासा भी प्रूव कर चुका है कि जो सेतु जो बांधा गया था, इट इज स्टिल विजिबल, वो देख सकते हैं वो. सो व्हाई आर वी सो फुलिश कि हम लोग, व्हाई आर वी इग्नोरिंग दैट थिंग. तो वी शुड बी वेरी, जैसे दूसरे लोग वेरी रिजिड ऑन देयर पाथ, वी शुड आल्सो बी वेरी रिजिड ऑन आवर स्क्रिप्चर्स एंड आवर पाथ. हरे कृष्णा. थैंक यू आशीष जी. Anybody else? Any questions? You can chat में भी आप type कर सकते हैं if you have any Yeah, questions. if you have any network issue, then you can put it on the chat box. if no one, then I have one last one for the day. If there is no other question for me. Please go ahead, Ashish. Questions are welcome. Okay. So अभी आप जब फर्स्ट 3 टेक्स्ट जो श्लोकास आपने पढ़ाया, मेरे साथ मैंने बुक ओपन रखी थी. अभी आप इतने सालों से योगा, भक्ति योगा में इन्वॉल्व है, बट मैंने जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, तो मुझे तो पूरा बाउंसर गया. मतलब आई वाज नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड लाइक ये श्लोक क्या कहने की ट्राई कर रहा है. बिकॉज मेरे पास 2 किताबें, एक ये भगवत गीता एज इज है जो आपने अभी बोली, मेरे पास वो एज इट इज, या एज इट इज, और मेरे पास फिर दूसरी और एक किताब है जो इंटरप्रेट, मतलब आई थिंक उसमें थोड़ा एलोबरेट किया गया हुआ है. तो
मैंने इनिशियली तो स्टार्ट ये एज इज से की थी, बट मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था, मतलब इट वाज गोइंग वेरी बाउंसर। तो मुझे आई हैड टू टेक अ हेल्प ऑफ अनदर बुक, तो मैं दोनों बुक को पैरेलल पढ़ता था, मतलब एक श्लोक यहाँ पे, फर्स्ट श्लोक पढ़ा मैंने यहाँ पे, उसके साथ में दूसरे किताब में जाके मुझे उसका इंटरप्रिटेशन समझना पड़ा, तब जाके मेरे पल्ले में कोई बात पड़ रही थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये बहुत हाई लैंग्वेज में है। तो अगर जैसे हमने तो अभी ये जर्नी स्टार्ट की है, मैंने तो पहले भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, मेरे लिए तो वो जो B.R. चोपड़ा ने दिखाया था टीवी में, वही कुरुक्षेत्र का युद्ध था। आई हैव नेवर, और मुझे मतलब मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं भगवत गीता इंग्लिश में पढूं, मतलब दो माय फैमिली इज अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन कृष्णा, बट हमने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे ये किसी ने भगवत गीता गिफ्ट की थी तब, बट इट वॉज अ बाउंडर टू बी। तो हम इसको कैसे, अभी जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम डिवोटी ऑफ कृष्णा, मतलब आई एम अंडरस्टैंडिंग के इट हैज टू कम फ्रॉम द सेम लीनिएज, जो आई थिंक विशाखा माता जी ने भी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि वही लाइन में आता है। तो अगर मैं सिर्फ इंडिपेंडेंटली किताब को पढूं तो मुझे लगता है मुझे सालों साल लग जाएंगे बाय द टाइम इसका मैं डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं। तो हाउ डू आई गो अबाउट, मतलब बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी साथ में एक पैरेलल बुक को पढूं अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड दैट एज यू सेड प्रोबब्ली वो जो हम स्टार्टिंग में वर्ड पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन हो एंड इट टेक्स मी इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो हम, आई मीन, हाउ डू आई go about this? Yeah, Ashish ji, this is also another nice point what you have raised. Actually, Prabhupada ji ne, he has tried to simplify as much as possible. Keeping in mind, he has also spoken about the personal motives of other speakers, जैसे दूसरे लोग हैं. So even he is trying to capture that. So maybe we are not aware of that motives. तो इसके लिए हम लोग लगता है अरे यहाँ पे इस चीज की चर्चा क्यों हो रही है, मे बी वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, बट एज यू गो ऑन आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। और इसके लिए मतलब मैं हूँ, साथ में विशाखा माता जी है, तो वी विल बी अ गाइड फॉर यू। जैसे बोलते हैं ना कि स्टडी जो है, अगर मैं एक MBBS का बुक लेके आऊँ घर पे और मैं अपना पढ़ाई करना चालू करूँ, तो आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर। मैं कोई मेरे पास सर्जरी के लिए कभी नहीं आएगा। फॉर दैट I need to go to a university. I have to take an admission and I have to learn it in a right context. तो वैसे ही भगवत गीता भी जो है, मतलब बहुत से लोग पढ़ते हैं इसे, एंड इफ दे गेट मतलब कोई गलत बुक उनके हाथ में लग जाती है विच इज मिस इंटरप्रेटिंग, तो वो डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं। बट एज इट इज जो है, आई विल से कि दिस इज द राइट बुक। अगर आप हैं इसको पढ़ते रहें तो श्योर यू विल गो इन राइट डायरेक्शन। और इसमें अगर आपको कोई अगर डाउट है तो माई सेल्फ इज देयर, विशाखा माता जी है, हेमा जी है, तो विल गाइड यू ऑन दैट थिंग। एंड आई थिंक इसमें मतलब आज तक मैंने जितने लोगों से सुना है कि मतलब दे डिडंट हैड एनी मतलब ऐसा कुछ कभी मतलब डाउट रेज नहीं हुआ, बट स्टिल या मतलब आप फर्स्ट टाइम मतलब मैं आई केम अक्रॉस यू कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी का भगवत गीता समझने के लिए आपको दूसरा बुक लेना पड़ रहा है। बट आई थिंक दैट्स द ओनली एस्पेक्ट, क्योंकि प्रभुपाद इज कवरिंग लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो पर्सनल मोटिव जो लोग यहाँ पे डालने का प्रयास करते हैं भगवत गीता में, एंड दैट उससे बचाने के लिए प्रभुपाद जी हम लोग को बहुत सी चीजें हम लोग को यहाँ पे कवर करते हैं। सो वी मे नॉट बी इनिशियली मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाऊँ कि यहाँ पे ये चीज क्यों कही गई है, बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम जाएंगे इसमें से we'll sure we'll be able to understand. Vishaka Mata, you want to say something on this? I just want to share my experience. मैंने अरेबिक क्लास ज्वाइन की थी जब मैं दुबई में थी, है ना। तो अरेबिक क्लास जब मैंने ज्वाइन की तो आपका तो पहला दिन है, मुझे तो 15 दिन तक बाउंसर लग रहा था। ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, मैं कभी इसको कर पाऊंगी, so first day is too early to even judge anything.
because everything is so new. किसी भी नई चीज को जब पिक करना होता है तो उसको थोड़ा समय देना होता है, थोड़ी सी, है ना, उस पेशेंस और समय, टाइम देना होता है. एंड you will see that class by class you will start understanding, not only understanding but even आपकी अपनी realizations भी आनी शुरू हो जाएंगी. You will be able to connect it with your current life. So मेरे हिसाब से सबसे easy to understand version ये है, क्योंकि इसमें practical tips हैं. जनरली बाकी गीतास पढ़कर हम फिलोसोफर बन जाते हैं, मतलब हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करना क्या है नहीं निकल के आता. इसमें से वो निकल के आएगा कि आज अभी इस वक्त मैं अपने जीवन में क्या एक चीज चेंज कर सकता हूँ या क्या चीज डाल सकता हूँ. फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट. बिकॉज ये जैसे प्रभु ने आज इतना अच्छी तरह से बैकग्राउंड हमें दिया, ईर्ष्या सामने से निकल के आई, केवल 3 ही वर्ष हुए, है ना. अटैचमेंट समझ कर आई, निकल कर आई. जो इन्होंने द्रुपद की इतनी अच्छी कहानी सुनाई, इट इज ईर्ष्या, यू नो, इट इज जेलसी कि ये इसने मुझे बना कैसे लिया. सिमिलरली दुर्योधन की जेलसी निकल कर आई कि देखो भाई के बच्चों में और अपने बच्चों में भेद कर रहे हैं. और फर्स्ट चैप्टर वर्स का प्रभु ने इतना अच्छा समझाया कि बाप कह रहा है सुलह ना हो जाए मेरे दोनों बच्चों में. कितनी बड़ी बात है. ये तथ्य कहीं पे भी निकल के नहीं आता कि बाप एंजाइटी में इसलिए है कि कहीं इन दोनों में, कौरवों में पांडवों में सुलह ना हो जाए. युद्ध चाहते हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध हो और मेरे बेटे जीते और ये सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरे फाइनली आई एम द राइटफुल ओनर, मुझ तक आ जाए. ये अंडरलाइंग करंट निकल कर आना इज वेरी रेयर. आई हैव नॉट सीन दिस एनीवेयर. So with time, I can assure you that it will become so simple and so easy to understand. Yeah, right. Because जब इन्होंने समझाया तब, because I have read this earlier also, and now with the explanation, it was making more sense, and it was, able to give a good understanding of what is that one message coming out of the, one slok. Because I'm sure every slok has a particular message for us to imbibe into our life, and that is very important. We are able to, grasp it. I think it answers my question. Thank you so much. So if you don't have any more questions, anybody else? Yeah, Pooja ji, Vinu ji, Reggie ji, if you have any comments, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, Yeah, please share your please share. Yeah. comments as well. जरूरी नहीं है कि आपने कोई प्रश्न ही पूछना है. How would you like the class to continue? आपका feedback मिलता रहेगा तो हमारे लिए easy हो जाएगा सर्व करना. हेमा माता जी. It's a Yes. very Sorry. interesting. Sorry, Hema, go ahead, please. No, guys. Okay. Go ahead. Very interesting session. For me, my Hindi is also improving. The more and more, I listen in Hindi. So maybe sometimes, right, certain words, if I'm not sure, I'll definitely reach out, for an explanation. But I think, what I feel is the more and more we get into this, the more and more questions we have. And, Vanita, as you pointed out, what happens is slowly you'll start relating it to what happens in your life, and slowly possibly start applying to it. But I think it'll take time. It is not like few sessions we can get a hang of it or whatever, maybe years. But there is something that will keep holding us to this always. And the session was really wonderful and explain. So we'll go actually verse by verse like this, all the the 18 chapters. Is that the approach that you will take? Yeah, we'll do that. Okay, that would be great. That will be great. Yeah. Then. So maybe we'll try to cover maximum possible verses in a day, and every time we do that, we'll go through all this, and then I'll try to connect these stories from Mahabharata also, so it becomes very easy to understand what is the background, why is it happening. So we'll do that. So thank you very much, Reggie ji.
Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. प्रभु जी इट्स आर लाइक ब्लेसिंग्स कि हमें आपसे कुछ सुनने मिल रहा है प्रभु जी. प्रभु जी इट्स लाइक एवरी टाइम जैसे हम गीता खोलते हैं तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है. इज द Yeah. सेम वे बिकॉज ये सब हमने चैप्टर्स स्टिल अभी हमने वनिता माता जी विशाखा माता जी के साथ में हमने 6 चैप्टर अभी शुरू किया है रिसेंटली. बट ये Okay. फर्स्ट चैप्टर अगेन ऐसे लग रहा है हम फिर से नया कुछ सुन रहे हैं. इट्स रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू प्रभु जी. एंड जैसे आशीष जी का और वैजी माता जी का भी यही था ना कि हम लोग पहली सेशन में कुछ नहीं सीखते और हम लोग देखते हैं नॉर्मली हम लोग चाहे जो भी चाहे इवन इफ यू लर्न ट्राई टू लर्न एनीथिंग हम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए. और जैसे माता जी ने अरेबिक का एग्जांपल दिया तो मतलब 15 दिन तक समझ में नहीं आया. बट या इट बिकम्स वेरी इजी जब मतलब कोई गाइड करने वाला हो हम लोग को बताने वाला है एंड स्लोली गो थ्रू. जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं. मैं जब दुबई में था तो मैं वहाँ पे रमादा में स्विमिंग सीखने के लिए जा रहा था. तो इट वाज जस्ट अ 15 डे कोर्स और मेरा ऑलमोस्ट 13th डे था मेरा और मुझे वो वहीं पे वो मुझे पकड़ के मुझे पाँव मारने के लिए मैं आई वाज सो मच इरिटेटेड. मैं बोला आज 13वां दिन है मुझे कुछ तो सीखा. बोलते नहीं बस दिस इज द थिंग. एंड आफ्टर दैट उसने मुझे जो लास्ट के 2 दिन मतलब दैट वाज द मेन बोला कि ये जो 13 दिन में जो सिखा रहा हूँ दैट इज द मेन थिंग. एंड आई वाज सो एक्सपर्ट मतलब इसके बाद में उसने जो मतलब ही वाज श्रीलंकन मतलब वो मुझे क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आता था. वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता था और मैं जो उसको बोलता था वो इंग्लिश उसको समझ में नहीं आता. बट ही वाज सच एन एक्सपर्ट टीचर कि वो पानी के अंदर जाके ग्लास पहन के मेरा हर मूव्स देखता था वो लास्ट के 2 दिन में. एंड उसने मुझे जो बोला ये जो मैंने सिखाया 13 दिन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. एंड इसके बाद मैं इतना एक्सपर्ट हो गया कि लोग मेरे पास जो आते थे सीखने के लिए कि आप मुझे स्विमिंग सिखाओ. तो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज कि वी जस्ट हैव टू फेथ ऑन आवर गाइड. कि हाँ मतलब मुझे इरिटेट होता था बट आई यूज्ड टू फील ना ये जो सिखा रहा है. एंड आफ्टर माय कोर्स वाज कंप्लीटेड आई वाज वेरी हैप्पी. आई ऑलवेज आज भी उसको याद करता हूँ उस लड़के को दैट ही हैज टॉट मी. सो ऑल वी नीड इज वी नीड टू हैव पेशेंस एंड वी नीड टू गिव टाइम. जैसे माता जी ने बोला कि वी नीड टू गिव टाइम. ऐसा नहीं है कि यार छोड़ो मुझे नहीं सीखना. नहीं वी नीड टू हैव पेशेंस एंड नीड टू गिव टाइम कि धीरे धीरे हो जाएगा. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कन्वे द मैसेज. थैंक यू. हरे कृष्णा. जस्ट क्विकली पूजा जी और विनु जी से अगर कुछ इफ दे वांट टू से समथिंग. आज मेरा पहला दिन था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आगे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे. ये सब चीजें तो लाइफ में बहुत काम आती है मुझे पता है और मुझे भी ये अपने आप को इम्प्रूव करने में और लाइफ में काफी हेल्प करेगी. जय श्री कृष्णा. थैंक यू पूजा जी. जय श्री कृष्णा. Hare Krishna. I'm Hare actually Krishna. joining from my mother's ID. My name is Anushka. So this was Oh. also my first class. So I'm very much looking forward to them. And Wow. Jai. Prabhu, she is a 20-year-old youth. Yeah, so she looks very young and it's Yes. very nice that we have members from all the Yeah. walks of life. So this is very nice, Vinu ji. We expect that you will be there for next class Yes, also, yes. and please be there. yes, It of is so course. nice. And if you have any doubts, and because generally youth like you young बोलते हैं ना बहुत enthusiasm रहता है, बहुत क्वेश्चन रहता है, तो please come up if you have I'm anything. sure आगे जाके आएंगे. मम्मा बोलती है मैं बहुत पूछती हूँ. Oh really? और मुझे बहुत क्वेश्चन पूछने वाले अच्छे लगते हैं, तो हमारा अच्छा चलेगा. Yeah, thanks Vinu. Yeah, over to you Vishaka Mataji. I want to thank you on behalf of everyone and personally from the bottom of my heart, Prabhu. I mean, आप 26 साल से हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में and the thing that impresses me most about you is your utter humility. You know? आप इतने humbly अपने आप को you project yourself like you are below us, beginners हो. और वो ये कला
दिखाई या कॉपी नहीं हो सकती, ये अंदर से आती है। और आपने इतने अच्छे से एक इनिशियल बैकग्राउंड दिया पहले महाभारत का, that really helped us get into the mood of Bhagavad Gita. That was very important. Introduction के बगैर शुरू करना मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्ट और वो एंथुजियाज्म आ पाता जो आपने किया। और जो आपने स्टोरीज तीनों वर्सेस की सुनाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो इसके एक्सप्लेनेशन में भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो हमें समझ में आया, दैट वाज so I'm very excited to hear now the other verses, क्योंकि इतनी सारी कहानियां हैं यहाँ पर, and all that is going to come from you because you have such a vast experience in this matter. And in the end I would like to say कि I know how packed your schedule is, उसके लिए भी आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं. I'm very very grateful to you, very grateful. I think big thank you, very very big thank you for taking out time, because आपका schedule सुन के तो लग ही रहा है कि you have actually sacrificed your personal time. So very very thank you. I think we'll always be indebted for that, because this begins the path of the spiritual journey, and it is coming at a your sacrificing of your personal 1.5 hour. So I think big thank you from the bottom of my heart as well. Yeah, thank you very much आशीष जी. This is all just in service to my spiritual master. मेरे गुरु को ये मेरा सेवा है. To Srila Prabhupada. Because of him only, Srila Prabhupada, I am into whatever I am today. That is just because of Srila Prabhupada and all the nice devotees. बस मेरा भी यही है कि जो मैंने सुना है वो तोते की तरह आप लोगों को मैं सुनाते रहो. And that will be very nice. So let's go ahead on this journey. Hare Krishna. Looking forward to the next class and to the recording of your class, which I think you will post in this group only. Yeah. I will do that. I will post the recordings as early as possible. Maybe today or tomorrow. By tomorrow I will do that. So everybody can. जो group के बाकी लोग, I think almost there are 20 people in the group. Not everybody had joined, but at least they can at their convenience they can hear. And if somebody who has missed out because of network connectivity, they can again hear it again. Yes. And on our part, we will come punctually and regularly to your class because you are taking so much time out for us. So अपनी तरफ से minimum ये तो कर ही सकते हैं कि हम time पे आएं और regularly. So, thank you, Mataji. Thanks again. Thank you. Hare Krishna. Chalo, see you next time. Hare Krishna everybody. Hare Krishna. Dhanavad pranam. Dandavat pranam.